Your challenge, if you choose to accept it, is this. Let's go! Let's go! Show up on day 1, work out with us for 30 minutes, feel good right away. Yo! Repeat 5 days a week for 3 weeks. 3 weeks? 5 workouts a week. We're Body, and we call that a body block. You pick the block and you're going to love the experience. On week 4, this part is really important. Take the week off. Seriously, we mean it. Rest, go on vacation, or try something new. Maybe some yoga. Notice you're not holding on to any tension here. Or a dance class. Get sexy with it, daddy. You do you. And then start again. Be committed to this process. Choose a new body block each month. Get a new challenge each month. Have fun every day. Avoid burnout. You're not going to quit on yourself today. This is how you reach your goals. You in? There is nothing that we can't do if we work together. Sign up for your first body block today. Visit body.com for a free trial. That's BODI.com. Are you ready to get started? Hello and welcome to All Indians Matter. I am Ashraf Engineer. On July 11, 2006, 7 bomb blasts ripped across local trains in Mumbai. The blasts occurred within a space of 11 minutes with the bombs concealed in pressure cookers. They killed 209 people and injured more than 700. The police responded as expected with about 350 people detained within 36 hours of the blasts. In September 2015, 12 persons were convicted by a special Maharashtra Control of Organised Crime Act court, with 5 of them sentenced to death. But there was one man who was let off, declared innocent. But not before an ordeal that included a life torn apart, torture and stigma that would simply not wash off. All Indians Matter. We have on the show Abdul Wahid Sheikh, who was freed by the court as the police couldn't find any proof for the charges against him. Later, Wahid, a school teacher, wrote a book titled Beguna Kaidi or Innocent Prisoner, documenting the 9 years he spent in prison. Abdul, welcome to the show. Shukriya, Ashraf bhai. Abdul, tell us about your background, your childhood, and what you used to do before the 2006 blasts. देखिए मेरा जन्म जो है पूना में हुआ है बेसिकली, और उसके बाद फिर हम लोग बचपन से बॉम्बे में ही रहे। म्युनिसिपल स्कूल में हमने एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की, एक ट्रेनिंग हासिल की जिसे डीएड कहते हैं। और उसके बाद फिर अंजुमन इस्लाम नाम की एक स्कूल है साउथ बॉम्बे में, वहाँ पर मैं जॉब पर लग गया। लेकिन 2001 में जब ट्विन टावर को गिराया गया अमेरिका में, और उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको बैन किया। और उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को उसके केस में गिरफ्तार किया। जैसे हाल ही में पीएफआई को बैन किया गया है, और पीएफआई के नाम पर बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही है। तो उसी तरह 2001 में हमको गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया। तो उस केस के बाद फिर हम पुलिस के रिकॉर्ड पर आ गए। जब भी इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक होता था या कोई कम्युनल टेंशन क्रिएट होता था, तो उसके बाद जो है पुलिस हमको परेशान करती थी, बुलाती थी, इंक्वायरी करती थी। और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, मैं कामकाज करने लगा। लेकिन पुलिस के साथ जो है ये प्रॉब्लम चलता रहा, और फिर अल्टीमेटली 2006 में जब ट्रेन का ब्लास्ट का केस हुआ, तो उसके बाद पुलिस ने मुझे उस केस में गिरफ्तार किया। लेकिन उससे पहले मेरी लाइफ जो है एक अच्छी लाइफ गुजर रही थी, लेकिन कभी कभी पुलिस का एक टेंशन रहता था। तो जब 2006 के ब्लास्ट हुए, तो एग्जैक्टली कैसे सर्कमस्टांसेस में आपको गिरफ्तार किया गया? क्या हुआ एग्जैक्टली? कौन से दिन आए और कैसे आपको अरेस्ट किया? देखिए 11 जुलाई को जो ब्लास्ट हुआ है, उस वक्त मैं मुमरा में एक रेंटेड फ्लैट है मेरा, मैं उसमें रहा करता था। और जैसा कि मैंने बताया कि इस केस से पहले ही 2001 में मुझ पर सिमी का केस बनाया गया था, और उसकी वजह से पुलिस मुझे बार बार बुला करके पूछताछ करती थी। तो जब ये जो ब्लास्ट हुआ है, तो उसके बाद भी पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो है सिमी के जो रिकॉर्डेड लोग हैं या जिन पर सिमी का केस है, उन लोगों को बुला करके इंक्वायरी की, मुझे भी बुलाया। और फिर जो है लोकल पुलिस स्टेशन में और क्राइम ब्रांच में और एटीएस में और सारे पुलिस ने यहाँ से वहां तक के एक हवलदार से लेकर जो है उस वक्त का जो एटीएस चीफ था रघुवंशी, उन्होंने भी जो है बुला करके इंक्वायरी की और छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जब अल्टीमेटली उनको कोई रियल कल्प्रिट्स नहीं मिले, तो उसके बाद जो है उन्होंने इस केस के अंदर लोगों को फंसाना शुरू किया। अभी देखिए जैसे एक चोर है, जैसे मान लीजिए छोटी सी चोरी किया है उसने, और बाद में उसी इलाके में एक बड़ी चोरी हो गई, तो अगर कोई
असल चोर नहीं मिलेगा तो फिर पुलिस यही करती है, उसी चोर को डाल देती है उस केस के अंदर और ये बताती है कि भाई ये पहले भी चोरी करता रहा है, तो ये बड़ी चोरी भी इसने किया। तो पब्लिक भी उस पर जो है रिलाय करती है, यकीन करती है। तो हमारे साथ भी मुझे लगता है यही मामला हुआ कि जब ये बड़ा जो केस हुआ, उनको जब असल लोग नहीं मिले, तो चूंकि हम पर एक छोटा केस सिमी के नाम पर था, टेररिज्म का टैग था, तो उस पर उसकी वजह से हमको इस बड़े केस में डाल दिया और लोगों ने भी जो है बहुत आसानी से उसको जो है एब्जॉर्ब कर लिया। You were charged with giving shelter to 6 Pakistani men. So, tell us about the build up to this charge. आपने कुछ तो बताया कि बार-बार आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया, तो किस किस्म का इंटरेक्शन रहा पुलिस के साथ? तो पुलिस तो जब बुलाती थी तो वही पूछती थी कि भाई आपका 2001 का केस जो सिमी का बना है वो किस पोजीशन में है, कहाँ ट्रायल चल रहा है, आप हाजिरी पर जाते हैं क्या, आपके वकील हैं क्या, अदर जो को एक्यूज है उस केस के अंदर वो आपके संपर्क में है क्या, वो कोर्ट में आते हैं क्या, तो वो सारी चीजें पूछती थी। फिर वो लोग साथ ही साथ जो है बैकग्राउंड पूछते, कहाँ रहते हो, ये जो फ्लैट है आपका मुंब्रा का खरीदा हुआ है या रेंटेड है, उसका लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट कहाँ पर है, वो मुझसे मंगाया। पासपोर्ट के बारे में इंक्वायरी की, पासपोर्ट है क्या, मैंने कहा है, एक्सपायर हो गया, वो भी मुझसे मंगाया और उन्होंने ले लिया, आज तक वो पासपोर्ट मुझे दिया भी नहीं। तो जब सारा बैकग्राउंड जमा कर लिया तो फिर उनकी स्टोरी जो उन्होंने बनाई है, उस स्टोरी में जो लोग जहाँ फिट बैठ सकते थे उनको वहां पर उन्होंने फिट कर दिया। तो चूंकि मेरा एक फ्लैट था तो उन्होंने ये बताया कि भाई इस फ्लैट के अंदर जो है चंद पाकिस्तानी आकर के रुके थे और वहां पर वो उन्होंने खाना पीना खाया, आराम किया और प्लास्टर करने के बाद वो वहां से जो है आसानी से इंडिया के बाहर निकल गए। किसी के पास गाड़ी थी, मारुति गाड़ी थी हमारे को एक्यूज के बाद, वो बता उसकी स्टोरी ये बनाई कि इसने जो है गवंडी से बांद्रा में जो है बॉम्ब ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस गाड़ी का इस्तेमाल किया। कोई हमारे केस में जो है एक मोबाइल रिपेयरर था, तो उसको बताया कि इसने बम बनाने में इसने जो है मदद की है। तो इस तरह से जो लोगों का बैकग्राउंड मालूम करके, अब कुछ लोग जो है जियारत के लिए ईरान गए थे, पासपोर्ट पे उनके लिखा हुआ है कि वो लोग ईरान गए थे, जियारत के लिए गए थे और वो पासपोर्ट भी उन्होंने जमा किया। तो उन्होंने ये स्टोरी बताई कि ये जियारत के लिए ईरान गए नहीं थे, बल्कि ईरान गए और वहां से जो है छुपते छुपाते पाकिस्तान गए, ट्रेनिंग हासिल की और ईरान के रास्ते वापस इंडिया में आ गए। तो पुलिस ने जो है जब हमारा सारा बैकग्राउंड जान लिया तो अपने बताई हुई स्टोरी के मुताबिक हम सबको जो है वहां पर फिक्स करने की कोशिश की और पूरी स्टोरी बना करके चार्जशीट में पेश कर दी। जब आपका अरेस्ट हुआ फाइनली, यू हैव सेड, पहले भी आपने बताया कि यू वर टॉर्चर्ड सिवियरली। कुड यू डिस्क्राइब दैट फॉर अस, एग्जैक्टली क्या हुआ? तो देखिए 2001 से जो सिमी का केस बना था और उसके बाद से आज तक के जो है वो टॉर्चर का सिलसिला चल रहा है। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही करीब 1:30 बजे घाटकोपर पर क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वाले मेरे घर पर आए थे। मैं घर पर नहीं था, बाहर था, तो उन्होंने जो है मेरे घर वालों से मेरी इंक्वायरी करने लगे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी है वगैरह वगैरह, और मेरा नंबर वगैरह लेकर के वो लोग गए। तो आज कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, 7 साल का अरसा गुजर चुका है, उसके बावजूद भी जो है पुलिस वाले मुझे आज तक के जो है उसी निगाह से देखते हैं और उसी तरह से मुझे ट्रीट करते हैं। तो 2001 से 2023 तक का ये जो टॉर्चर का जो सिलसिला है, ये टॉर्चर अलग-अलग शक्लों में होता है, आप जानते हैं। जब पुलिस कस्टडी होती है उसके अंदर टॉर्चर की अलग-अलग शक्लें हैं, जब इल्लीगल डिटेंशन होता है उसके अंदर अलग-अलग शक्लें हैं, जब आदमी जो है बाइज्जत बरी होकर बाहर आता है उसके बाद भी पुलिस का जो है टॉर्चर की अलग-अलग शक्लें हैं। तो मैंने बहुत ही डिटेल में जो मेरी किताब है बेगुनाह कैदी, उसमें एक चैप्टर ही मैंने पुलिस टॉर्चर के ऊपर जो है लिखा है, उसको भी लोग देख सकते हैं। और अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो 4 तरह के टॉर्चर होते हैं। फर्स्ट डिग्री में जो है बहुत मामूली किस्म का जो है गाली-गलौज होती है और उसको जो है इंसल्ट की जाती है और मज़हब के नाम पर गालियाँ दी जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड स्टेप में उसको जो है मारा जाता है डंडों से, पट्टों से और उसको डराया जाता है, उसके सामने किसी और को मारा जाता है और उससे जो है कन्फेशन पर साइन ली जाती है या कन्फेशन स्टेटमेंट याद करवा के जो है रिकॉर्डिंग करवाने की कोशिश की जाती है। जब उस स्टेज पर भी वो काम नहीं करता या पुलिस की बात नहीं सुनता तो फिर थर्ड डिग्री टॉर्चर होता है। थर्ड डिग्री टॉर्चर में उसके साथ जो है वाटर बोर्डिंग होती है, उसके पैरों को जो है 180 डिग्री तक स्ट्रेच किया जाता है, उसके एनस में जो है केमिकल डाला जाता है, सूर्य प्रकाश तेल डाला जाता है और उसको जो है उल्टा लटका कर मारा जाता है, उसके एनस में डंडा डाला जाता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक उसके प्राइवेट पार्ट्स पे, निपल्स पे दिए जाते हैं और एक बंद डार्क कमरे में उसको बंद रखा जाता है। तो इस तरह उसको सोने नहीं दिया जाता कई-कई दिनों तक के
उसको बैठने नहीं दिया जाता है कई-कई घंटों तक के। तो ये अलग-अलग जो है जो टॉर्चर्स है ये 3rd डिग्री टॉर्चर कहलाते हैं, जिसमें आदमी टूट जाता है और पुलिस के बताई हुई स्टोरी पे साइन करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो ये बर्दाश्त कर ले और यहाँ पर भी पुलिस की बात नहीं माने, तो फिर 4th डिग्री टॉर्चर शुरू होता है, जिसे मैं 4th डिग्री कहता हूँ। ये आपको किसी किताब में कहीं मिलेगा नहीं। 4th डिग्री मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टॉर्चर आप पर नहीं होता बल्कि आपके रिश्तेदारों पर होता है। वो आपकी बीवी को, आपकी माँ को, आपके भाई-बहनों को बुला करके पुलिस स्टेशन में जो है उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको गाली-गलौज करते हैं और आपके सामने उनको मारते हैं, आपके सामने उनको गालियाँ देते हैं, आपके सामने जो है घर की औरतों को जो है बेपर्दा करते हैं और उनके साथ जो है गंदी हरकतें करते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये सारी हरकतें उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक कि आप जो है पुलिस की बात नहीं मान लेते और उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि अगर आप पुलिस की बात नहीं मानेंगे तो आपको इस केस इन लोगों को भी इस केस के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी आपके भाई को भी केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा और पुलिस का कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुमको अरेस्ट कर लिया, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका, तुम्हारे भाई को या तुम्हारे बाप को भी अगर के केस में डाल देंगे तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। वहाँ पर आकर जो है ना आदमी टूट जाता है और वो ये कहता है कि भाई ठीक है, जो कुछ ज़ुल्म हो रहा है, जो टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ, मैं तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, मैं अभी तक कर रहा था, लेकिन मेरी वजह से मेरे घरवाले क्यों परेशान हो और मेरी वजह से मेरे घरवालों को टॉर्चर क्यों किया जाए वगैरह-वगैरह। तो फिर वो जो है थक-हार के जो है वो साइन कर देता है, पुलिस की कन्फेशनल स्टेटमेंट को मान लेता है और फिर उसके बाद वो टॉर्चर बंद होता है। तो बेसिकली ये 4 टॉर्चर के स्टेप्स है जो अलग-अलग तरह से अपनाए जाते हैं और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की हर पुलिस स्टेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर पुलिस वाला जो है इन टॉर्चर को इस्तेमाल करता है। सो दूसरे अक्यूज्ड को भी ऐसे टॉर्चर किया गया? हाँ, हाँ, हमारे साथ जो है हमारे ज जो मुझे भी जो है टॉर्चर किया गया और मेरे साथ जो मेरे 12 को-एक्यूज़ है इस केस के अंदर, उन सबको टॉर्चर किया गया और बल्कि हमारे सामने एक-दूसरे को टॉर्चर किया गया। हमारे सामने उनके रिश्तेदारों को बुला कर के टॉर्चर किया जाता था और उनको उल्टा लटका कर मारना, वाटर बोर्डिंग करना, उनको इलेक्ट्रिक शॉक देना, उनको उनके जिस्म पर जो है कीड़े डालना और मतलब इतना टॉर्चर होता था कि मतलब एक तो टॉर्चर का ये भी तरीका है ना कि आपको नहीं मारा जाएगा लेकिन आपके सामने किसी और को, आपके को-एक्यूज़ को मारा जाएगा। तो उसकी उसकी दहशत से जो है आप जो है सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो ये भी तरीका है, इसीलिए वो हमारे सामने को-एक्यूज़ को मारा करते थे और यही कहते थे कि अब तुम्हारा नंबर है। तो जो बात हम कह रहे हैं उसको तुमको मान लेना है और साइन कर लेना है। तो वहाँ पर भी आदमी जो है टूट जाता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी तो मार बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब सामने किसी और को मारा जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता है, तो वहाँ आदमी जल्दी टूट जाता है। तो ये 12-13 लोगों पर ये सारा टॉर्चर हुआ है और सारे ही एक्यूज़ ने मैं समझता हूँ कोर्ट में वो डिटेल में लिख कर दिया है कि किस तरह उनके साथ टॉर्चर हुआ, किस तरह कन्फेशनल स्टेटमेंट को जो है अंडर द ड्यूरेस हासिल किया गया और सबने जो है उस सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अदालत ने आफ्टर थॉट कहा है वो सारी चीज़ों को और कहा है कि जो टॉर्चर हुआ है वो साबित नहीं। हालाँकि जे हॉस्पिटल का मेडिकल पेपर है जिसमें ये कहा गया है कि ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी एक एक्यूज़ को 11 इंजरी मार्क्स है। उसको उस पेपर को भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पेपर है उसको भी जज ने मानने से इनकार कर दिया और बदकिस्मती से ये 11 लोगों को सज़ा दे दी। अभी आने ये जुलाई का महीना है और 11 जुलाई को इस केस की एनिवर्सरी है और हर साल हम लोग इसके सिलसिले में एक प्रोग्राम भी करते हैं बॉम्बे में और ये बताते हैं कि ये केस जो है बोगस है और इसमें फँसाए हुए लोग बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। तो ये सारे ही एक्यूज़ ने इस टॉर्चर को बहुत ही डिटेल में अदालत में लिख कर के दिया है, वो कोर्ट का रिकॉर्ड है। तो डिड यू साइन अ कन्फेशन इवेंचुअली और डिड यू रिफ्यूज़? नहीं, मुझसे उन्होंने बहुत टॉर्चर करके कन्फेशनल स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऑफ़िसर से ये बात कह दी और मुझे पता था पहले से थोड़ा बहुत कि कन्फेशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है और कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के बाद जो है किसी भी केस में पुलिस जो है कन्विक्शन आसानी से हासिल कर लेती है। तो मैंने पुलिस ऑफ़िसर से ये कह दिया था कि आप मुझे कितना भी मारो, आप मुझे जान से मार दो लेकिन मैं कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं किसी भी कन्फेशनल स्टेटमेंट पर साइन नहीं करूँगा। तो वो पर मैंने बहुत पहले ही दिन ये क्लियर कर दिया था, तो वो मुझे मार रहे थे और धमका रहे थे कि मैं किसी तरह से साइन कर दूँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तैयार नहीं हो रहा है और उसको पता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट होता क्या है और उसका क्या नतीजा निकलने वाला है, बहुत सारे एक्यूज़ को नहीं पता होता है। क्योंकि पुलिस क्या करती है, उनको गुमराह करती है एक्यूज़ को कि नहीं आप तुम साइन कर दो और मजिस्ट्रेट के सामने या जब तुम्हारे ट्रायल कोर्ट के सामने जाओगे तो तुम वहाँ पर डिनाई कर देना, रिट्रैक्ट कर देना, तुम छूट जाओगे। तो वो उस झांसे में आकर के बहुत से लोग जो है
कन्फेशनल स्टेटमेंट पे साइन करते हैं और बाद में जाकर किसी मजिस्ट्रेट के सामने या सेशन कोर्ट के ट्रायल जज के सामने वो रिट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो जज उसको नहीं मानता, कहता है ये आफ्टर थॉट है। तुमने जो है वॉलंटरी और फ्री विल के साथ जो है अपनी मर्जी से तुमने जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है और टॉर्चर का कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं है, तुमको किसी ने टॉर्चर होते हुए देखा नहीं। अब देखिए पुलिस स्टेशन में या टॉर्चर सेल के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर टॉर्चर सेल भी होता है, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। हमारे जज ने भी कहा कि अगर लिखा रहता है क्या टॉर्चर सेल, तो मैंने कहा लिखा रहता है टॉर्चर सेल, क्योंकि वहाँ अलग अलग रूम्स होते हैं, चेंजिंग रूम होता है, कंप्यूटर रूम होता है, इंट्रोगेशन रूम होता है, टॉर्चर सेल रूम भी होता है जहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। तो वहां पर तो कोई विटनेस होता नहीं जो लोगों को टॉर्चर होते हुए देखे, पुलिस वाले ही होते हैं, जो एक पुलिस वाला पैर पकड़ता है, दूसरे पुलिस वाला डंडा मारता है। तो पुलिस भाई भाई होती है जो मिल करके एक ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं जो इलीगल है, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी इजाजत नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल कानून में जिसकी इजाजत नहीं है, जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन की हम लोग बात करते हैं, जिसकी हमने साइन किया है, इंडिया ने भी साइन किया है कि किसी के साथ टॉर्चर नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये काम पूरे भारत में बड़े जोर से होता रहता है और उसका कोई विटनेस नहीं बनता ना। मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर, टॉर्चर सेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, तो मैं कहाँ से विटनेस लाऊंगा? पुलिस वाले तो डिनाई करते कि हमने कोई टॉर्चर नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट्स कभी कभी अक्सर वो जो है गलत रिपोर्ट बना करके पेश करते। तो कोर्ट ये कहता है कि तुम्हारा टॉर्चर करने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए जो है ये माना जाता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट बहुत सही विलिंगली लिया गया है, इसीलिए उसकी बुनियाद पे आपको सजा दी जाती। तो लकीली मैंने साइन नहीं किया और कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट मेरे खिलाफ नहीं था, इसलिए एक रीजन ये भी है कि मुझे अदालत ने छोड़ दिया। Often accused in such cases say that even if they are eventually declared innocent, जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट होता है एंड उन लोग की जिंदगी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है इरिवर्सिबली। तो आपका क्या मानना है? नहीं, बेशक ये बात दुरुस्त है कि जो प्रोसीजर है वही पनिशमेंट है। अभी हमारे केस में देखिए, अगर हमारा केस ढंग से चलता तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर जजमेंट आ जाना चाहिए था और 1 साल के अंदर, क्योंकि मेरे खिलाफ सिर्फ एक ही विटनेस था, सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन विटनेस था, जिसकी वजह से मुझे 9 साल तक के जेल में रखा गया। क्योंकि जब तक कि वो विटनेस जो है उसकी टेस्टिमनी कोर्ट के अंदर नहीं होगी और ये नहीं पता चलेगा कि वो कितना सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आर्गुमेंट होगा, फाइनल आर्गुमेंट होगा और उसके बाद सारी चीजें देखने के बाद जो है कोर्ट उसको जजमेंट देगा। तो इस सारे एक विटनेस के लिए मुझे 9 साल तक के इंतजार करना पड़ा। मुझे कभी बेल भी नहीं दी गई, मुझे कोई रिलीफ नहीं दिया गया और सारे एक्यूज के साथ मुझे जेल रखा गया। तो बेसिकली ये जो यूएपीए है, ये जो एमसीओसी एक्ट है, ये जितने भी ब्लैक लॉज है, जैसे पहले टाडा था, पोटा था, आप जानते हैं, उसको रिपील किया गया और वो सारे सेक्शंस जो है यूएपीए के अंदर और एमसीओसी एक्ट मोकोका के अंदर डाले गए। तो ये सारे ब्लैक लॉज बनाए ही इसीलिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है डिटेन करके रखा जाए और यही जो प्रोसीजर है ये एक पनिशमेंट के तौर पर उनको जो है दिया जाए। तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। अगर एक विटनेस अगर मेरे खिलाफ जो था, अगर उसको पहले ही दिन बुला करके उसकी टेस्टिमनी हो जाती थी तो मैं समझता हूँ मुझे 9 साल तक के जेल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस प्रोसीजर को अपनाने की वजह से, क्योंकि हमारा जो कानून है ना वो ऐसा है कि जिस पर इल्जाम लगाया गया है कि आप जो है टेररिस्ट है या आपने कत्ल किया है या आप गुनहगार है, उसकी बात सबसे आखिरी में सुनी जाती है। जो प्रोसीजर है आप देखिए, जो सीआरपीसी है हमारा, उसमें यह है कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की बात सुनी जाएगी, विटनेसेस की बात सुनी जाएगी, डिफेंस विटनेसेस की बात सुनी जाएगी और सबसे आखिर में आता है 313 सेक्शन 313, जिसमें एक्यूज से ये कहा जाता है कि ठीक है अब तुम्हारा क्या कहना है, बताओ, तुम्हारे खिलाफ ये जो है एविडेंस आ चुके हैं, ये गवाहियां आ चुकी है, तुम्हारे खिलाफ ये इंक्रिमेटिंग मटेरियल्स आ चुका है, अब तुम्हारा क्या कहना है। तो सबसे आखिर में हमसे पूछा जाता है और उसके बाद जो है फैसला दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उल्टी गंगा है जो बहती है। अब एक्यूज से पहले पूछा जाना चाहिए कि आपका क्या कहना है, ये जो चार्जेस आप पर लगाए गए, ये जो चार्जशीट के अंदर ये इल्जाम है, आपका क्या कहना है, वो रिकॉर्ड करके और उसके बाद जो जल्द से जल्द फैसला दिया जाना चाहिए। लेकिन पूरा सिस्टम जो है हमारा, जो जुडिशियल सिस्टम है, ये भी बिल्कुल करप्ट हो चुका है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह है, आज भी हमारे केस में नहीं बल्कि दूसरे केसेस के अंदर भी, और यूएपीए और मोकोका और न जाने कितने ऐसे ब्लैक लॉज है जिनके तहत वो आज भी जेलों के अंदर जो है कैद है और परेशान है। तो आपने 9 साल बिताए जेल के अंदर, तो कैसी थी लाइफ जेल के अंदर? वो जरा डिस्क्राइब कीजिए, क्या होता था एग्जैक्टली, रोज क्या था आपका, डेली लाइफ क्या था, डेली रूटीन क्या था? देखिए, मैं दिल से एक बात बताऊं, मैं जेल का हर कैदी सुबह उठता है तो वो सोचता है मैं आज छूट जाऊंगा,
वो ये सोचता है कि आज मेरा बेल का ऑर्डर आ जाएगा, वो सोचता है कि आज मेरा एक्विटल का ऑर्डर आ जाएगा, वो सोचता है कि आज जो है पुलिस जो है मेरा डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाल देगी, आज जो है कोर्ट जो है मेरा फैसला सुना देगा, या कुछ ऐसा मौजज़ा हो जाएगा कि मैं जो है आज छूट जाऊँगा। और यही वो दिन जो है वो उस उम्मीद से वो रोज़ सुबह उठता है और फिर वो शाम हो जाती है, और इस तरह से न जाने कितने दिन उसके जो है गुज़र जाते। हमारा जो रूटीन था वो बहुत ही सिंपल रूटीन है। हम लोगों को सुबह 6 बजे उठा दिया जाता था। उसके बाद हम लोग जो है नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, उसके बाद हम लोग जो है फ्रेश होते थे, और उसके बाद एक्सरसाइज़ जिनको करना है, एक्सरसाइज़ वगैरह करने के बाद नाश्ता 7 बजे आता था, 7 बजे हम नाश्ता करते थे। उसके बाद न्यूज़पेपर आते थे, हमारे ही पैसों से हम न्यूज़पेपर खरीदते थे, 10 से 12 न्यूज़पेपर अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में आते थे, वो सारे हम पढ़ते थे। बुक्स आती थी, लॉ बुक्स आती थी, चार्जशीट पढ़ना है, हमारी चार्जशीट 20,000 पेजेज़ की थी। उन चार्जशीट को पढ़ना, कानून की किताबें पढ़ना, आरटीआईज़ बनाना, एप्लीकेशंस बनाना, पॉइंट्स तैयार करना, ये सारी जो लीगल एक्टिविटीज़ हैं हम ये करते थे। उसके साथ ही हमारे घरवालों को लेटर्स लिखना है, दोस्त लोगों को लेटर्स लिखना है, वो भी हम लिखते थे। और फिर कोर्ट रहता था हमारा, तो कोर्ट हम सुबह 10 बजे कोर्ट आ जाते थे, शाम में 5 बजे तक कोर्ट में रहते थे। कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स में हम लोग डिसिप्लिन से हिस्सा लेते थे। फिर शाम में वापस आने के बाद जो है नमाज़ जो 5 वक़्त की पढ़ी जाती है, वक़्त-वक़्त पे वो नमाज़ पढ़ना है। और फिर जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई है, जो टेस्टिमनीज़ आई है, जो नए डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर आए हैं, उनकी कॉपी लेकर आकर के फर्दर उसको पढ़ना, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के डिफेंस लॉयर्स को देना, और फिर रात में खाना खा के सो जाना और दूसरे दिन फिर से कोर्ट के लिए तैयारी करना। तो ये इस तरह से हमारा पूरा दिन, मतलब हमको वक़्त कम पड़ता था। हम न्यूज़पेपर पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते थे, हम बुक्स पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते थे। हमको लगता था अरे बाप रे! इतने सारे काम रह गए हैं और दिन खत्म हो गया है। तो रोज़ाना एक जोत, एक उम्मीद ये रहती थी कि ये दिन हमारा जेल का आखिरी दिन है, और ये दिन हमारे लिए खुशी का दिन साबित होगा, नई खुशखबरी लेकर आएगा। तो उम्मीद के सहारे जो है, अब अगर मुझे पहले दिन अगर कोई कह देता कि आपको 9 साल के लिए जेल में डाला जा रहा है, तो वो तो आदमी सुन के ही मर जाता, कि 9 साल कैसे कटेंगे जेल के अंदर। लेकिन एक-एक दिन से आदमी इस उम्मीद से काटता है कि बहुत जल्द या कभी ना कभी हम ज़रूर छूटेंगे, और इस तरह से 9 साल भी गुज़र गए। तो अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल भी है, एहसान भी है कि हमको कभी जो है वहशत नहीं हुई कि अरे हम लोग कहाँ आके फँस गए, और हम लोग रोने लगे या जो है सीना पीटने लगे कि क्या फँस गए, क्यों? अभी जो लोग अंबानी केस के अंदर, अंबानी के घर के बाहर जो इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स ने जो गाड़ी रखी थी, जिलेटिन वगैरह की, ये जो ऑफिसर्स अंदर गए हैं, ये इनके बारे में मैं सुनता हूँ तलोजा जेल वगैरह में बंद है, कि ये रोज़ाना मतलब रोते-धोते हैं कि ये हम लोग कहाँ फँस गए आकर के। तो उनके लिए जेल एकदम एक वहशत और एक हैबत वाली चीज़ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमको ऐसी कोई वहशत नहीं थी, हमको इत्मीनान था कि भई हम बेगुनाह हैं, और आज नहीं तो कल हम ज़रूर छूटेंगे, और अल्लाह की मर्ज़ी है कि हम आए, अल्लाह की मर्ज़ी से ही हम बाहर भी निकलेंगे। और बहुत इत्मीनान और सुकून और डिसिप्लिन के साथ हमने जेल, हमारी पूरी जेल लाइफ़ में, ये जेल सुपरिटेंडेंट भी ये बात कहते थे कि आपका जो ग्रुप है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई इल्लीगल एक्ट करता है, ना गाली देते हो, ना शराब पीते हो, और वैसे भी शराब पीने के लिए अंदर परमिशन नहीं है, लेकिन कुछ लोग चोरी-छुपे लाते हैं, ना सिगरेट पीते हो, ना चरस गांजे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जेल में होता है। खुद पुलिस वाले ला करके बेचते हैं, एक धंधा है वहाँ पर। और कोई जो है गलत हरकत नहीं करते, लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को आरटीआई बनाना, लोगों को जो है उनके बेल एप्लीकेशन, उनके डिस्चार्ज एप्लीकेशन तैयार करना, उनकी मदद करना ताकि वो लोग छूटे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत ही साफ-सुथरी ज़िंदगी गुज़ारी, और डिसिप्लिन के साथ हम लोग रहे। बल्कि हमारे कुछ एक्यूज़, मैं भी था और दूसरे एक्यूज़ भी थे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से हमने जो है हायर एजुकेशन हासिल की। किसी ने बीए किया, किसी ने एमए किया, किसी ने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बहुत से लोग लॉ कर रहे हैं। तो हम पढ़ते भी रहे, अपनी जो है एकेडमिक जो है डिग्री बढ़ाते भी रहे, और साथ ही साथ लोगों की मदद करते हुए हम जो है उम्मीद के साथ दिन गुज़ारते। आज भी जो 12 लोग अंदर जेल में हैं, बल्कि 11 हो गए, अब तो एक का इंतकाल हो गया कोविड की वजह से, वो लोग भी इसी तरह की ज़िंदगी डिसिप्लिन की गुज़ार रहे हैं, और इस उम्मीद से गुज़ार रहे हैं कि ये झूठा केस है, और एक दिन ज़रूर इसका सच सामने आएगा, और ये लोग ज़रूर जो है रिहा होंगे। अल्लाह ताला इसको इंशाअल्लाह ज़रूर उनको रिहा करेगा। आपकी फैमिली ने कैसे कोप किया? फैमिली में मैं जब जेल गया हूँ तो मेरी बीवी थी और मेरे माँ-बाप थे, मेरे 2 बच्चे थे। तो अब ये होता है ना कि कमाने वाला एक ही आदमी है, मैं कमाता था, और बाकी तो कोई कमाता नहीं था मेरे घर में। लेकिन जब कमाने वाला ही जेल के अंदर चला जाए तो वो फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। फिर मेरी बीवी को जो है जॉब करना पड़ा, है ना? मेरी जो बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची थी, दूध पीती हुई बच्ची थी, उसका दूध छुड़ाना पड़ा, मेरी बीवी को जो है नौकरी करनी पड़ी। और मेरे मेरे जो फादर थे उनको जो है अस्थमा का दौरा आता था, अटैक आता था।
और वो टेंशन में रह करके उनका जो है बहुत ज़बरदस्त अटैक आया, उनका इंतकाल हो गया। माँ को पहले से ही जो है मेंटल प्रॉब्लम था, मेरे अंदर जाने की वजह से वो मेंटल प्रॉब्लम और जो है बढ़ गया। इसकी वजह से उनको जो है सिज़ोफ्रेनिक अटैक आते थे और वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी। तो मैं समझता हूँ कि वो जो परेशानी जेल में रह कर के एक कैदी बर्दाश्त करता है, उससे कई गुना ज़्यादा परेशानी उसके घरवाले जो है बाहर बर्दाश्त करते हैं। उनको हर तरह से लड़ना पड़ता है सोसाइटी के साथ, उनको फाइनेंशियल चीज़ें भी देखनी है, उनको बच्चों की तालीम भी देखनी है, उनको रोज़गार भी देखना है और उनको बीमारी से भी जूझना है। उनको जो है कोर्ट भी आना है, हॉस्पिटल भी आना है, वकीलों से भी मिलना है, डिफेंस की भी तैयारी करना है। तो मैं समझता हूँ उन लोगों ने बहुत मुझसे ज़्यादा जो कैदी है उससे ज़्यादा उन लोगों ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की और हमारे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की और वो मोहब्बत में, रिश्तेदारी में जो कुछ बर्दाश्त किया मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको उसका बेहतरीन अज्र दे। लेकिन वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, हमें कभी भी उन्होंने जो है गलत नहीं समझा, कभी भी हमें उन्हें टेररिस्ट नहीं समझा। वो यही समझते हैं आज भी कि ये सब बेगुनाह थे, फँसाए गए थे और हम आखिरी दम तक के इनके साथ है। इनकी रिहाई के लिए हम आखिरी दम तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज भी जो लोग अंदर है हमारे केस में 11 लोग, उनके रिश्तेदार भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कभी सोचा कि आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट दोज हु अक्यूज्ड यू, या किसी कॉम्पेंसेशन के लिए, या वैसा कुछ? एक्चुअली देखिए भारत में जो है ना कोई कानून नहीं है कि जिसके तहत आप कंपनसेशन मांग सके, जिसके तहत जो है आप किसी पुलिस वाले पर जो है केस दर्ज कर सके, क्योंकि एमसीओसी एक्ट में और यूएपी एक्ट में ये साफ लिखा है कि पुलिस वाला जो भी काम कर रहा है इस एक्ट के तहत वो गुड फेथ में कर रहा है। तो उस पर जो है आप इल्ज़ाम नहीं धर सकते, जब तक कि कोई क्लियर कट कोई मामला सामने न आए। यानी किसी को जो है उन्होंने एनकाउंटर में मार दिया और ये साबित हो गया, किसी को टॉर्चर किया और वो साबित हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर उसने किसी को गिरफ्तार किया है और प्रोसिक्यूट किया है, तो वो सब गुड फेथ में है और अगर वो छूट जाता है, पुलिस का और अदालत का यही कहना है ना आज भी कि भई तुम जो छूटे हो इसलिए नहीं छूटे हो कि तुम बेगुनाह हो, तुम जो छूटे हो इसलिए छूटे हो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पुलिस जमा नहीं कर सकी, सबूत जो है अदालत में पेश नहीं कर सकी या साबित नहीं कर सकी। तो आज भी जो है जज ने भी जो लिखा है वो यही लिखा है कि तुम्हारे को जो है एक्विटल मिलता है, लेकिन उसने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि तुम इनोसेंट हो। और हमारे जज सुप्रीम कोर्ट के भी जजों का हाल ये है कि अगर किसी केस में वो मेंशन भी कर देते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे इस तरह के जजमेंट है कि किसी एक्यूज को छोड़ने के बाद अगर वो मेंशन भी कर देते हैं कि ये इनोसेंट है, उसके बाद भी वो पुलिस वालों को पर कार्रवाई करने के लिए हिचकिचाते हैं, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो ये कि पुलिस वालों के खिलाफ केस करना या कंपनसेशन की मांग करना, ऐसा कोई कानून इंडिया में नहीं है। अक्षरधाम मंदिर ब्लास्ट के अंदर जो केस जिस एक्यूज को पकड़ा गया, जिसको फांसी की सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको रिहा कर दिया, जब उसने अदालत के अंदर कंपनसेशन के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर वो गए, तो वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ ये जो है एक फुटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी। और दूसरा हमारे एक सीनियर लॉयर से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तुम इंतजार करो, कुछ दिनों के बाद हम इस पर कुछ सोच सकते हैं, जब पूरा केस छूट जाए उसके बाद हम देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी तक के कोई केस किया नहीं। अब आपको तो रिहा कर दिया गया, लेकिन एक जैसे आपने बताया एक लेबल है, एक स्टिग्मा है कि अरेस्ट का, एक्यूजेशन का, ये आसानी से जाता नहीं, इट्स नॉट इजी टू वॉश ऑफ। तो आपने अपनी लाइफ कैसे ट्रैक पे लाई वापस? देखिए मैंने आने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी जो नौकरी थी जो मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, तो मैंने उसको रीइंस्टेटमेंट के लिए मैंने कोशिश की और एज पर लॉ मुझे वो नौकरी मिल गई, तो मैं वो नौकरी कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने आने के बाद जो जो 11 लोग हमारे केस में फंसे हुए हैं, जिनको मैं जानता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा बेगुनाह है, तो उनकी रिहाई के लिए मैंने जो है एक्टिविज्म शुरू किया। मैंने किताब जो जेल में लिखी थी उसको पब्लिश किया। मैंने जो है एक एनजीओ बनाया इनोसेंट नेटवर्क के नाम पर। मैंने जो है इस किताब के हवाले से अलग-अलग जगह पे प्रोग्राम्स किए, कुछ पॉलिटिशियंस से मिला, कुछ एक्टिविस्ट से मिला और ये बात कहने की कोशिश की कि ये भी बेगुनाह है, उनको भी रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन और फिर इन सारी एक्टिविटीज़ में मतलब अब तो वो लोग मुझे एक एक्टिविस्ट के नाम से भी हैसियत से जानते हैं, एक ऑथर की हैसियत से जानते हैं, एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की हैसियत से जानते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी करने के नतीजे में जो हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग जो एक्टिविस्ट और जो ह्यूमैनिटी को समझते हैं, जो जस्टिस को समझते हैं, उन्होंने जो है मुझे एक्सेप्ट किया
और हमारा काम चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जो है तकलीफ में नहीं आना चाहते, इसीलिए वो मुझसे जो है गैप बना करके रखते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, दूर-दूर रहना चाहते हैं, एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि वो पुलिस की परेशानी में नहीं आना चाहते, इसलिए शायद वो उनको लगता है कि अगर इससे कोई रिश्ता रखेंगे या इससे कोई कॉन्टैक्ट रखेंगे तो पुलिस की परेशानी में आ सकते हैं। ठीक है, वो उनकी सोच है, वो डिस्टेंस रखते हैं। तो मैंने अपने आप को इस तरह से मैंने फिर आने के बाद मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तो मैंने जेल में कर ली थी। मैंने फिर आने के बाद जो है पीएचडी के लिए मैंने कोशिश की। आजकल मैं आप जानते हैं कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, बुक्स भी लिख रहा हूँ। अभी मेरी दूसरी बुक आई है इशरत जहां एनकाउंटर नाम पर। तो मैं इस तरह से रिसर्च का काम करके और अपनी एक्टिविटी करके अपने आप को मैं जो है सोसाइटी के साथ जो है एक अप टू डेट मैं रखना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जैसे मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं ये नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो। इसलिए मैं सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ और इसलिए मैं सारी चीजें लिखना चाहता हूँ। जो मेरे साथियों के साथ हो रहा है, जो कि बेगुनाह है, वो किस तरह से जल्द रिहा हो जाए, उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। अभी पिछले 7 सालों से अपील जो है पिछले 7 सालों से हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कोई जज जो है इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा सेंसिटिव केस है। कोई जज इसमें डेयरिंग करके जजमेंट देने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं, चीफ जस्टिस के नाम पर भी हम लेटर्स लिखने वाले हैं, उनके भी अदालत में रिट पिटीशन फाइल करने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो और उन लोगों को जो है जल्द से जल्द रिहाई मिले। Abdul, it is said that under the Indian criminal justice system, it is easier to prove an innocent man guilty than for an innocent man to prove his innocence. मतलब बेगुनाह को गुनहगार साबित करना आसान है, लेकिन बेगुनाह को अपनी बेगुनाही साबित करना बहुत मुश्किल। How do you react to that? ये जो इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें एक जो बेगुनाह है उसकी बेगुनाही साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमारा जो एक गोल्डन प्रिंसिपल है कि हर एक्यूज को बेगुनाह माना जाए जब तक कि उसका गुनाह साबित नहीं होता, लेकिन इस पूरे प्रिंसिपल को उल्टा कर दिया गया है, खास करके टेररिज्म के केसेस में। हर टेररिज्म के केसेस के एक्यूज को गुनहगार माना जाए जब तक कि वो बेगुनाह साबित नहीं होता, ऐसा कर दिया है। अब देखिए कि एक दोनों चीज में जो है जमीन आसमान का फर्क है। जो पहला जो गोल्डन प्रिंसिपल है उसमें जो है पॉजिटिव चीज है, यानी ये कि प्रोसिक्यूटर को साबित करना है कि ये जो है गुनहगार है, एक पॉजिटिव चीज है। मतलब कि किसी को चोर साबित करना, किसी को टेररिस्ट साबित करना, ये प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। तो वो जो है सबूत और गवाहों की बुनियाद पर वो साबित करता है। लेकिन जब इस तरतीब को उलट दिया जाता है, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, यानी इस एक्यूज से ये कहा जाए कि तुम चोर नहीं हो ये साबित करो, तुम टेररिस्ट नहीं हो ये साबित करो, तो ये नेगेटिव चीज साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप देखिए बैलेंस नहीं है, एक तरफ पूरा स्टेट है और एक तरफ जो है कमजोर एक्यूज है। एक तरफ जो है बेहतरीन स्टेट के लॉयर है, बेस्ट प्रोसिक्यूटर है, और दूसरी तरफ हाल ये है कि एक्यूज के पास जो है डिफेंड करने के लिए कोई वकील नहीं है। हमारे भारत के अंदर बहुत सारे आप जानते हैं बार एसोसिएशंस ने, बार काउंसिल्स ने बाकायदा रेजोल्यूशंस पास किए इस तरह के केसेस के अंदर कि जो टेररिस्ट केस में पकड़े गए हैं, वो सिमी का केस हो या पीएफआई का केस हो या जो है इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे जो गिरफ्तारियां हुई है, बम ब्लास्ट के नाम पर जो गिरफ्तारियां हुई है, ये बात बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया है कई बार काउंसिल्स ने कि हम ऐसे लोगों का केस नहीं लड़ेंगे और ना ही किसी को लड़ने देंगे, बल्कि जो लोग लड़ने के लिए गए उनको मारा भी गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है एडवोकेट शाहिद आजमी है। आप जानते हैं कि किस तरह से उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वो जो है टेररिज्म के केसेस में पकड़े गए लोगों को डिफेंड कर रहे थे और कई लोगों को उन्होंने छुड़ाया भी, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये जो काले कानून बनाए गए हैं, टाडा, पोटा, मोका या यूएपीए, तो इसमें जो है बिल्कुल एक रिवर्स सिचुएशन है जहां पर ये बताया जाता है कि एक्यूज को ये साबित करना है कि वो गुनहगार नहीं है या वो टेररिस्ट नहीं है या उसने वो गुनाह नहीं किया है। तो ये जो है नेगेटिव जो साबित करने वाली चीज होती है, ये बहुत मुश्किल होती है और इसको साबित करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। यानी कोई कैसे साबित करेगा कि मैं ये नहीं हूँ? कोई ये तो साबित कर सकता है कि मैं ये हूँ, अगर ये मुझे कहना है कि हाँ मैं जो है एक इंसान हूँ, हाँ मैं जो है एक ईमानदार आदमी, साबित कर सकते हैं। लेकिन एक आदमी को ये साबित करना है कि आप साबित करो आप बेईमान नहीं हो, आप दहशतगर्द नहीं हो, ये साबित करो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है।
और इस वक्त जो यूएपीए का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, आप जान रहे हैं कि किस तरह से डिसेंट को सताया जा रहा है, किस तरह से एक्टिविस्ट को, स्टूडेंट्स को, एकेडमिशियंस को, है ना, किस तरह से एक्टिविस्ट को, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को परेशान किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हो रही है और यूएपीए का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है, आप जानते हैं। तो इसके बाद जो है, और एक जो आपने बात कही थी कि प्रोसीजर ही पनिशमेंट है, ये सालों साल से इस केस में डाल करके बेल का प्रोविजन इम्पॉसिबल कर दिया गया है और सालों साल कैद रखा जाता है, ट्रायल नहीं चलाया जाता है। आपको पता है, इंडियन मुजाहिदीन का एक केस है, मैं जानता हूँ 2008 का, बॉम्बे का, जो पिछले, आप देखिए 2008 से 15 साल हो रहे हैं, 15 साल से उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और एक एक करके जो है उनको वो बेल के लिए जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। नहीं, आप सोचिए 15 साल से किसी केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अब कब ट्रायल शुरू होगा? और इस तरह के केसेस में आप जानते हैं कि 8 से 10 साल ट्रायल कंक्लूड होने में लगते हैं, नहीं 25 साल 30 साल के बाद जो है उनका जजमेंट आएगा और अगर उस वक्त वो छूट जाएंगे तो फिर जो है उनका छूटना और ना छूटना जो है बिल्कुल बराबर रहेगा। तो हमारा तजुर्बा यही बताता है कि ये सारे जो काले कानून है, ये जो है बिल्कुल एंटी ह्यूमन कानून है और ये इंसानों को सताने के लिए, लॉन्ग टर्म उनको जो है जेल में बंद रखने के लिए बनाए गए हैं और इसका यूज और मिसयूज और एब्यूज जो है बड़े पैमाने पर पुलिस कर रही है। अब्दुल, आपने एक किताब लिखी अबाउट योर ऑर्डील, आपके जो 9 साल गुजरे जेल के अंदर, तो वो आइडिया कहाँ से आया? आपने कैसे सोचा कि मुझे किताब लिखनी चाहिए? और दूसरी बात यह है कि एक फिल्म भी बनी कॉल्ड हीमोलिम्फ, तो वो कैसे हुआ? देखिए, जब मैं 2006 में जेल में पहुंचा तो मेरे सामने 2-4 आइडियाज थे कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं रेस्टिंग से पहले ही पीएचडी के लिए कोशिश कर रहा था। नेट सेट का मैंने एग्जाम दे दिया था और मैंने एक टॉपिक भी सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे इस टॉपिक पर पीएचडी का रिसर्च करना है। लेकिन सडनली जो है अरेस्टिंग हो गई, उसके बाद इनकार्सरेशन हो गया और मुझे भी ये समझ में आ रहा था कि एनसीओसी एक्ट लगाया गया है और इसमें जो है बहुत लंबा ट्रायल चलेगा, मैराथन ट्रायल जिसे कहते हैं, और बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब जब रहना है जेल के अंदर तो कुछ ना कुछ करना है। तो मेरे पास ऑप्शन थे, या तो मैं पीएचडी को अपनी कंप्लीट करूं, या तो मैं लॉ पढूं, या तो मैं जो है इस केस के ऊपर बुक लिखूं, या इस तरह के अलग से कुछ रिसर्च करूं। ये सारे 4-5 ऑप्शंस थे। तो मैंने अपने को एक्यूज के साथ और जो मेरे वहाँ दोस्त थे अच्छे, उनसे मशवरा करने के बाद फिर ये तय किया गया कि पहले हमको लॉ करना चाहिए। फिर हम लोगों ने कोर्ट से परमिशन लेके एलएलबी हमने किया, सिद्धार्थ कॉलेज में दाखिला लिया और फिर वहाँ हमने कोर्ट की पढ़ाई की। लेकिन 2006 और 7 में जो एडमिशन लिया था वो जो है हम लोग एलएलबी नहीं कर सके। शाहिद आजमी का जो मर्डर हो गया, हम हमारा जो है हाई सुप्रीम कोर्ट से हमारे केस पर स्टे आ गया, हमको जो है जेल के अंदर मारा गया। वो सारे एपिसोड आप जानते हैं, स्वाति साठे के साथ जो हमारा मामला चल रहा था। उसके बाद हमको जेल से ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरी जेल में, दूर दराज कोल्हापुर जेल में भेज दिया गया और बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया गया अंडा सेल के अंदर। पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड से और पूरी जेल से भी हमको काट करके एकदम अलग थलग रख दिया गया। 1.5-2 साल तक के हम लोग बिल्कुल पूरी दुनिया से, बिल्कुल जेल वालों से भी मतलब कटे हुए थे। बस एक ही हवलदार, एक पुलिस वाला आता था 24 घंटे में, जिससे हमारा कनेक्शन होता था, बाकी कोई कनेक्शन नहीं था। तो वो जो कानून की जो पढ़ाई थी वो नहीं की जा सकी और फिर बाद में जब ट्रायल शुरू हुआ उसके बाद हमने वापस से उसको किया। फिर 2014 के आते-आते जो है केस जो है कंक्लूड हो गया और 2014 से 15 जज ने जो है जजमेंट लिखने के लिए टाइम मांगा और हम समझ रहे थे कि भाई इतना वॉल्यूमियस केस है, हजारों पेजेस की चार्जशीट है, थाउजेंड्स ऑफ जो है टेस्टिमनीज है पेजेस की शक्ल में, एग्जिबिट्स है, तो इन सारी चीजों को पढ़ना, इवेलुएट करना, उसका जजमेंट लिखना, तो ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें कम से कम 6 से 8 महीने लग सकते हैं। हमारा ये कैलकुलेशन था। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये टाइम सही है कि हमारे केस पर एक किताब लिखी जाए, क्योंकि 2006 में तो बहुत सारी चीजें सामने नहीं थी ना, 2014 के अंदर बहुत सारी चीजें सामने थी, डेपोजिशन की शक्ल में, एविडेंस की शक्ल में, एग्जिबिट की शक्ल में, एप्लीकेशंस और वेरियस जो कोर्ट्स ऑर्डर थे उसकी शक्ल में। तो वो सारे मैंने ऑर्डर्स निकाल के, डेपोजिशंस निकाल के, टेस्टिमनीज निकाल करके मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मैंने ये किताब
अथर रोड जेल के अंडर सेल में लिखना शुरू की। और वहाँ मतलब आप देखिए कि बाहर जज जो है जजमेंट लिख रहा था, हमारी किस्मत का फैसला कर रहा था, और अंदर बैठ करके मैं इस केस के बारे में जो है लिख रहा था। और 1 साल करीब इसको लगा लिखने के लिए। और जैसे ही मेरी यहाँ किताब कंप्लीट हुई, वहाँ जजमेंट कंप्लीट हुआ, और उसके बाद उसने जो वर्डिक्ट दी, मुझे रिहा किया और बाकी लोगों को सजा दी जो बेगुनाह है। उसके बाद फिर मैंने बाहर आने के बाद ये किताब छापी। फिर जहाँ तक फ़िल्म का सवाल है, ये किताब बाहर आई, पब्लिश होने के बाद बहुत फ़ेमस हुई, इसके ऊपर बहुत जगह प्रोग्राम्स भी हुए, इसका इंग्लिश में, हिंदी में वर्ज़न भी आ गया, मराठी में आ चुका है, बहुत जल्द शाये होने वाला है। तो एक छोटा-सा एक डायरेक्टर है सुदर्शन गमरे नाम का, जो बॉम्बे में रहता है, जिसने छोटी-मोटी फ़िल्में जो है, शॉर्ट्स फ़िल्में और जो है इस तरह की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनाई है, उसको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। उसी दौरान एनडीटीवी की एक जर्नलिस्ट थी, उसने जो है किताब लिखी थी, बहुत सारे कैदियों का ज़िक्र किया था, सुनित्रा चौधरी उसका नाम है। तो उसमें भी जो है उसने हमारे केस पर और मेरे बारे में प्रोफाइलिंग की थी। वो किताब उसने पढ़ ली थी और उसको उन सारी स्टोरीज़ में 15-17 स्टोरीज़ थी उसमें, और वो उसको ये किताब, ये स्टोरी बहुत पसंद आई, और वो ऐसी स्टोरी चाह रहा था, वो बड़ी फुल लेंथ फ़िल्म बनाना चाहता था, पूरी फीचर फ़िल्म हिंदी में बनाना चाहता था, और उसको एक अच्छी स्टोरी की तलाश थी। तो जब उसने ये स्टोरी सुनी, तो उसको बहुत अट्रैक्टिव लगी, और उसने फिर मुझसे राब्ता किया, और उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ, उसने स्क्रिप्ट लिखी, और इस तरह से वो फ़िल्म जो है हेमोलिप बनकर आई। अभी जो उसका रीनेमिंग और री-रिलीज़िंग होने वाला है, द टेरर के नाम से वो कोशिश कर रहे हैं कि रीनेम हो और री-रिलीज़ हो। तो ये फ़िल्म जो है इस तरह से आपके सामने बायोपिक की शक्ल में आपको नज़र आ रही है, हेमोलिम के नाम से है अभी। जी, और आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं नेम्ड अ अंडर ट्रायल, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जब कोविड-19 का जब यहाँ पर पूरे पूरे देश में, पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन चल रहा था, तो उस वक़्त हमारी किताब में दूसरी रिसर्च कर रहा था, इशरत जहाँ एनकाउंटर, जो उर्दू में छपकर आ गई है। तो उसी वक़्त हमारे ज़हन में आई, उस वक़्त के आप जानते हैं कि बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल को अपनाया, और बहुत सारे लोग अपने-अपने लेवल पर काम करने लगे, अपने-अपने शौक और मिज़ाज के हिसाब से। तो हमारे ज़हन में ये बात आई कि जो जो नैरेटिव है भारत के अंदर, कि मुसलमानों को बड़े पैमाने पर जो है रॉन्गफुल अरेस्टिंग, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन किया गया है, और उसके बाद सिमी के नाम पर और टेररिज्म के नाम पर लोग जो है अरेस्ट किए जा रहे हैं। 15-15, 20-20 साल रहने के बाद, ट्रायल चलने के बाद जो है बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं, यूएपीए के, मोका के, टाडा और कोटा के, आईपीसी के तहत भी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सारे जो केसेस को जो है प्रोफाइल किया जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए, और एक-एक स्टोरी जो है एक-एक शख्स की ले करके, उसका जजमेंट कॉपी ले करके उसको जो है प्रोफाइल किया जाए और लोगों के सामने पेश किया जाए। तो फिर ये एक्विट अंडर ट्रायल हमारे ज़हन में नाम आया, और एक यूट्यूब चैनल हमने लॉकडाउन में गालिबन 2019-20 में हमने इसको शुरू किया, और उसके बाद जो है हमने अब तक के 200 स्टोरीज़, उसमें करीब 200 लोगों की स्टोरी हमने कर दी है। उनके जजमेंट्स भी आपको जो है लिंक में मिल जाएँगे, उनसे रिलेटेड स्टोरीज़ भी हम मिल जाएगी। हमारा जो वेबसाइट है theinnocent.in, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। यानी हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी लोग बेगुनाह हैं और इस तरह के केसेस में फँसे थे और छूट गए हैं, उन सारे लोगों के जजमेंट, उन सारे लोगों के रिकॉर्ड्स, उन सारे लोगों की पर्सनल स्टोरीज़ एक जगह पर आ जाएँ। और हमारा इरादा ये है कि आगे चल कर के हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट करके कि इस जो है वेब सीरीज़ अगर बन सकती है, पूरी सीरीज़ इनोसेंट के नाम पर, तो इसको जो है वेब सीरीज़ की शक्ल में भी लाने का हमारा इरादा है। तो अब्दुल, here's a question I ask all my guests at the end of the show. Why do you do this work? आप ये काम क्यों करते हैं? देखो, एक तो मकसद ये है कि भई अल्लाह ने जो हमको तौफ़ीक दी है कि भई कुछ भला काम किया जाए, लोगों के भले के लिए कुछ काम किया जाए, तो उस जज़्बे के तहत, अल्लाह की तौफ़ीक के तहत हम ये काम करें। और सबसे बड़ा जो मेरे लिए, जो जिसको कहते हैं ना कि कौन-सी चीज़ आपको जो है उकसा रही है काम करने के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मेरे साथ हुआ है और मेरे बेगुनाह भाइयों के साथ हुआ है, जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूँ, जिनके साथ मैंने 9 साल बिताए हैं, और जिनके बारे में मैं गवाही दे सकता हूँ ऑनोद कि वो मेरे से ज़्यादा बेगुनाह है, वो जो है इस सिस्टम के मारे हुए हैं, इस सिस्टम के फँसाए हुए हैं, और आज भी जो है वो परेशान है। पिछले 17 सालों से वो जेल में है, तो उनकी रिहाई के लिए किस तरह से हाथ-पैर मारा जाए, किस तरह से उनके लिए कोशिशें की जाए, और किस तरह से वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए, अपनी फैमिली के साथ आ जाए, यही सोच और यही जज़्बे के साथ हम जो है काम कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि जिस तरह से हम इस केस में फँसे हैं पुलिस के हाथों, कोई दूसरा बेगुनाह फँसे।
ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अगर कुछ लोग इससे सबक हासिल करते हैं, कुछ लोगों को कुछ पॉइंट्स या कुछ क्लू मिल जाता है कि किस तरह से वो जो है पुलिस के हत्थे चढ़ने से बच जाए या पुलिस के झांसे में आने से बच जाए, तो मैं समझता हूँ एक भी अगर शख्स इस चीज से फायदा उठाता है और पुलिस के झांसे में आने से बच जाता है, पुलिस के जुल्म से बच जाता है, तो मैं समझता हूँ ये हमारी कोशिश जो है ठिकाने लगेगी। Abdul, I have no words. Your story is just one example of what happens when the state turns on its own citizens. Unfortunately, we are seeing so much of this today too. Maybe someday it will end and justice will prevail. Thank you for speaking with us. शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you all for listening. Please visit allindiansmatter.in, that's ALLINDIANSMATTER.in for more columns and audio podcasts. You can follow me on Twitter at Ashraf Engineer, that's ASHRAFENGINER, and All Indians Count, that's ALLINDIANSCOUNT. Search for the All Indians Matter page on Facebook. On Instagram, the handle is All Indians Matter. Email me at editor@allindiansmatter.in. Catch you again soon. You will fail. So what? Everybody does. But your gym, your watch, your yoga pants, they pretend you won't. So when you miss a day, eat the pancakes. Give up on a workout? You failed? Seriously, what the hell? We're Body. We've been a part of that too, but not anymore. At Body, we're rejecting perfection and embracing reality. Not in a Pizza Monday kind of way, in a loving your whole life kind of way. In a, this workout is fun and it's okay if I take a week off kind of way. In an, I'm eating healthy and it's okay if I indulge kind of way. In a, I like myself no matter what kind of way. Yeah, you will fail. We all will. But we're not going to let that be the end. You see that? We're already making progress. So let's keep going. We are Body. Start your free trial at body.com. That's BODI.com.